Good morning everybody and welcome in this lecture. As we discussed in the last lecture regarding certain points, but due to some technical problems, the chloroplast could not be completed in the last lecture. So we shall continue right from chloroplast once again. Then chloroplast. What is chloroplast first of all? Chloroplast is a green colored plastid that is present in all the photosynthesizing organism, on especially higher plants I am talking about. Chloroplast, chloros, here chloros means green and plastos means molded. Green plastid, it's a green colored plastid. You had studied the types of plastids like chromoplast, leucoplast and so on. Out of this is the green colored plastid, chloroplast. The main function of the chloroplast is photosynthesis. Of course photosynthesis because it is green in color. So now this chloroplast, it is the actual site of photosynthesis, we can say that. And that is why chloroplast is of the utmost important for every plant. Location, chloroplasts are present mainly in all the green parts of the plant. All the green parts of the plant. Which are the green parts of the plant? First of all, the leaf, the mesophyll tissue of the leaf. Then next one is called next one is the calyx. Then the young stem, and whatever it may be, the green part of that plant. In every green part of the plant, that chloroplast is present because that part is undergoing photosynthesis. प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन कलर का है वो सभी ग्रीन कलर के पार्ट्स में ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फिर वो कौन सा भी ग्रीन कलर का पार्ट हो। अभी इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले इसके नंबर देखेंगे। क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास इज अ ग्रीन यूनिसेलुलर अल्गा। सो ये जो ग्रीन अल्गा है इसमें ये यूनिसेलुलर होने के कारण ओनली अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन वन सेल, per cell one chloroplast. But in the mesophyll tissue of the higher plants, mesophyll tissue that we had studied in the anatomy of the flowering plant, in that mesophyll tissue about 20 to 40 chloroplasts are present per cell. In case of the mesophyll tissue, you know, palisade tissue and spongy parenchyma, in that tissue 20 to 40 chloroplasts are present per cell. Next, the size of the chloroplast, length is approximately 5 to 10 micrometer, width is 2 to 4 micrometer. Actually, though the function of the chloroplast is same, सभी ऑर्गेनिजम्स में या जहां कहीं पर भी ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसका फंक्शन तो सेम है, फोटोसिंथेसिस, एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसके शेप उस ऑर्गेनिजम्स के अनुसार अलग अलग होते हैं। ऑफ कोर्स उस ऑर्गेनिज्म के सेल के स्ट्रक्चर अनुसार, बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार, या फिर वो क्लोरोप्लास्ट जिस किसी भी पार्ट में प्रेजेंट है, आइदर लीफ हो या पूरी सेल हो, उसमें प्रेजेंट है, ये उसकी शेप्स कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, जो डेवलप्ड प्लांट्स है इनमें ये ओवल होते हैं या फिर डिस्कॉइड होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। उसके बाद जिग्नेमा, जिग्नेमा ये है ग्रीन अलगा, ये है अलगा। इस अलगा में ये क्लोरोप्लास्ट स्टार के आकार का होता है, स्टार शेप। उसके बाद यू नो वेरी वेल स्पाइरोगायरा, इन स्पाइरोगायरा विच इज अ ग्रीन अलगा, इस स्पाइरोगायरा में ये रिबन के आकार का, या फिर आप उसको स्पाइरल भी बोलते हो। हम जब ये स्पाइरोगायरा की सेल ड्रॉ करते हैं, स्पाइरोगायरा इज फिलामेंटस अलगा, इसका फिलामेंट जब ड्रॉ करते हैं तो हम इस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट उसमें निकालते हैं। तो ये जो जिगजैग दिखाया गया है, दिस इज एक्चुअली द रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आता है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो है ये भी कॉलोनियल ग्रीन अलगा है, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड होता है। ये हो गए उसके शेप्स। अभी हम जाएंगे एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की तरफ। I told you
we are studying the photosynthesis in higher plants. So we shall talk about the structure of the chloroplast, that is oval or discoid chloroplast only. See, what is the chloroplast? Chloroplast shape oval or discoid. Every discoid or oval chloroplast is covered with a double membrane. ये उसका डबल मेम्ब्रेन, ये इसमें this is the outer membrane, this one is the inner membrane. These outer and inner membranes are collectively called as the peristromium. पेरिस्ट्रोमियम, पेरी का मतलब सराउंडिंग, स्ट्रोमियम, स्ट्रोमियम का मतलब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो डॉट्स दिखाए गए ना, ये जो सब्सटेंस फिलअप है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज एक्चुअली द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स मतलब जो ब्राउन सब्सटेंस इसमें फिलअप होता है वो स्ट्रोमा, मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा, स्ट्रोमा प्लूरल नंबर है, स्ट्रोमियम सिंगुलर नंबर है, तो इस स्ट्रोमा के सराउंडिंग इसलिए उसको पेरिस्ट्रोमियम कहा गया है. पेरी मतलब सराउंडिंग, स्ट्रोमा मतलब स्ट्रोमा, पेरिस्ट्रोमियम, स्ट्रोमियम के सराउंडिंग, सो कॉल्ड एज द पेरिस्ट्रोमियम. पेरिस्ट्रोमियम का हर एक membrane, outer and inner, both the membranes are continuous membranes and these membranes are smooth. And these membranes allow certain substances to pass in and out of the chloroplast. अभी ये पूरी सेल है, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर से बाहर कुछ मटेरियल जाते हैं, बाहर से अंदर कुछ मटेरियल्स आते हैं. इसके लिए ये जो मेम्ब्रेन्स है ये हेल्प करेंगे. अभी इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो जगह प्रेजेंट है, ये जो कैविटी आपको दिखाई देती है, ये कैविटी, उसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडल. पेरीप्लास्टिडल स्पेस बोलिए आप उसको, या पेरीप्लास्टिडल कैविटी बोलिए. पेरीप्लास्टिडल स्पेस और पेरीप्लास्टिडल कैविटी, पेरी सराउंडिंग, प्लास्टिड, प्लास्टिड के सराउंडिंग जो कैविटी होती है उसको आप बोलते हो पेरीप्लास्टिडल कैविटी या पेरीप्लास्टिडल स्पेस. ये पेरीप्लास्टिडल कैविटी एक सब्सटेंस से फिलअप होती है, एक सब्सटेंस से फिलअप होती है, उस सब्सटेंस को बोलते हैं पेरीप्लास्टिडल फ्लूइड. पेरीप्लास्टिडल फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ होता है. अभी ये जो कैविटी है, पेरीप्लास्टिडल कैविटी, एक्चुअली क्या है ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की पार्ट को है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की पार्ट को है. आप ऐसे बोल सकते हैं कि बाहर से इसको आउटर मेम्ब्रेन लिमिट कर रहा है, इसीलिए उसको आउटर चेंबर भी कहा जाता है. आउटर चेंबर, पेरीप्लास्टिडल स्पेस व्हिच इज फिल्ड विद पेरीप्लास्टिडल फ्लूइड, इसको आउटर चेंबर भी कहेंगे. और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ये जो पूरी जगह है अंदर की, इसको आप इनर कैविटी भी बोल सकते हैं. ओके ना, या इनर चेंबर भी बोल सकते हैं. ये इनर चेंबर मतलब ये कैविटी, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ कलरलेस कोलॉइडल स्ट्रक्चर मैट्रिक्स कॉल्ड एज द स्ट्रोमा. अब इसको मैट्रिक्स क्यों कहा है? बिकॉज इट इज फिलिंग अप दैट कैविटी. ये अंदर की जो कैविटी है, ये जो इनर चेंबर है, तो उसको पूरा फिलअप करने का काम ये कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स. क्या खासियत है स्ट्रोमा की? स्ट्रोमा कलरलेस है, कोलॉइडल है, इसमें डीएनए है, आरएनए है, 70 इयर्स टाइप के राइबोसोम्स है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शंस, ये यहां पर प्रेजेंट है. अभी डार्क रिएक्शंस क्या है? ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस, जो हम बाद में देखेंगे. सो आउट ऑफ दिस द डार्क रिएक्शंस के लिए जो भी अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सभी एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं. अभी इस स्ट्रोमा की खासियत बताता हूं. स्ट्रोमा में ये जो डीएनए प्रेजेंट है ना, दिस इज द सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए. Circular and naked. What is naked now? Naked means without histone proteins.
ये डीएनए जो है ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन से। क्या है हिस्टोन प्रोटीन? आपको पता है, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर में स्टडी किए होंगे या फिर आप करेंगे। सो ये हिस्टोन प्रोटीन्स मतलब ऐसे प्रोटीन्स है पॉजिटिवली चार्ज जिसके ऊपर निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप किया जाता है टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट है, दैट इज व्हाई इसको नेकेड डीएनए कहते हैं। ये जो सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए है इसको बोलते हैं प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम बोलेंगे इसको, या उसको बोलेंगे सीटी डीएनए। सीटी मतलब क्लोरोप्लास्ट, कभी कभी कुछ जगह पे उसको सी डीएनए बोला है, लेकिन एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग टर्म है क्योंकि सी डीएनए में सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी हो सकता है, सी टाइप का डीएनए भी हो सकता है, इसलिए वी हैव टू राइट हियर सीटी डीएनए, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट डीएनए। Due to presence of DNA, the chloroplast can synthesize some of its proteins. But for the other proteins, synthesis of other proteins, that chloroplast has to depend upon the nuclear DNA. That is why chloroplast is said to be semi-autonomous. उसका खुद का डीएनए उसको प्रेजेंट है, लेकिन वो डीएनए इस क्लोरोप्लास्ट में लगने वाले सभी प्रकार के एंजाइम्स, प्रोटीन्स जो कुछ भी है ये तैयार नहीं कर सकता। कुछ तैयार कर सकता है, बाकी के प्रोटीन्स के लिए इस क्लोरोप्लास्ट को न्यूक्लियस के डीएनए पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। दैट इज व्हाई हम इस क्लोरोप्लास्ट को कंप्लीटली ऑटोनॉमस नहीं कहेंगे, सेमी ऑटोनॉमस कहेंगे, क्योंकि ये ऑटोनॉमस है, स्वायत्त, लेकिन पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं है। दैट इज व्हाई कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनॉमस। ये जो ब्लैक डॉट्स यहां पर दिखाए गए हैं, दीज आर द 70s टाइप ऑफ द राइबोसोम्स। ये 70s टाइप के राइबोसोम्स यहां पर प्रेजेंट है। अभी देखेंगे दूसरा पार्ट, ये हो गया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, as I told you, it is the site of dark reactions. डार्क रिएक्शंस की ये साइट है। अभी दूसरा पार्ट, ये जो दिखाए गए 1 2 3, ये जो पार्ट यहां पर दिखाए गए हैं उस पार्ट को कहेंगे ग्रैनम। सिंगुलर नंबर ग्रैनम, उसका प्लूरल नंबर है ग्रैना। प्लूरल नंबर है ग्रैना। सो ये जो ग्रैना या ग्रैनम है, this is in this manner, ग्रैनम। कैसे बना है ये ग्रैनम? Granum are the sac-like membranous structures which are made up of the thylakoid. Thylakoid, ये एक thylakoid है, ये पूरा ग्रैनम है, thylakoid, 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 thylakoid। उसका एक thylakoid अलग करके दिखा है। सो ये thylakoids एक दूसरे के ऊपर रखकर ये ग्रैनम बना है। सो ग्रैनम क्या है? sac-like structure है, and this is suspended in the, or you can say it is present, it is scattered, it is embedded in the stroma. स्ट्रोमा के अंदर ये embedded है। अभी ये ग्रैनम कैसे है? ये ग्रैनम is made up of thylakoids and these thylakoids are placed one above the other like a stack of coins. ये जो thylakoids है ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जैसे हम कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रख के एक ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उस तरीके से ये थाइलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर रखकर ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जिसको आप बोलेंगे ग्रैनम, प्लूरल नंबर ग्रैना। अब ये थाइलाकोइड कैसे है? थाइलाकोइड के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है ये थाइलाकोइड्स के मेम्ब्रेन, और दूसरा ये थाइलाकोइड का ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब कैविटी, थाइलाकोइड के अंदर कैविटी प्रेजेंट है और बाकी इट इज आउटलाइंड बाय मेम्ब्रेन्स। और खासियत बताता हूं इसकी, ये जो थाइलाकोइड है मतलब थाइलाकोइड से बना हुआ ग्रैना है, दिस ग्रैना आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस। साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस की साइट है मतलब क्या? मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होते वक्त जो भी लाइट रिएक्शंस होते हैं, मतलब जिस रिएक्शंस में एक्चुअली लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो
वो जो रिएक्शन जहां कहीं पर भी होते हैं वो ग्रैनम है, एक्चुअली ग्रैनम का थाइलाकॉइड है। एक्चुअली कहां पर होते हैं तो थाइलाकॉइड का ये जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड के, इस मेम्ब्रेन्स में कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सर्कुलर पार्ट है एक्चुअली 3 डायमेंशनल डायग्राम है व्हिच इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ हियर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ये जो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं इनको आप बोलेंगे क्वांटाजोम। क्वांटासोम्स इनको बोलेंगे। ये क्वांटासोम एक उठाकर यहाँ पर ड्रॉ किया है, क्वांटासोमा। क्वांटा क्वांटम का प्लूरल नंबर है। लाइट एनर्जी आपको पता है, आपने फिजिक्स स्टडी किया है, लाइट एनर्जी ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। इस फोटॉन्स के अंदर जो एनर्जी है आप उसको बोलते हो क्वांटम। तो ये क्वांटम और सोमा मतलब बॉडी, इस क्वांटम को एब्सॉर्ब करने वाली बॉडी, मतलब लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने वाली जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, उसको आप बोलेंगे क्वांटासोम। पार्क्स एंड बिगिंस इन्होंने बताया था, ये साइंटिस्ट के नाम है, पार्क्स एंड बिगिंस, इन्होंने बताया था कि क्वांटासोम्स आर द फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। क्योंकि इस क्वांटासोम में क्या है, इस क्वांटासोम में ये जो ग्रीन कलर का डॉट दिखाया गया है इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, और बाकी के जो है ये एक्सेसरी पिगमेंट्स। रिएक्शन सेंटर भी एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। वो कौन है, वो है क्लोरोफिल ए। और बाकी के एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन है, वो है क्लोरोफिल ए लेकिन अदर टाइप का, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, कभी कभी फाइकोबिलेंस भी, स्पेशली कैरोटीन का, ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेगा रिएक्शन सेंटर, ये खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्सेसरी पिगमेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेंगे और रिएक्शन सेंटर उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये हो गया क्वांटासोम्स के बारे में। तीसरा और अंतिम पार्ट है इसका, ये पार्ट है ये दिस वन, ये जो ब्लू कलर का दिखाया गया ना, ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है ना, आप उसको बोलते हो स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, कभी कभी उसको स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स भी कहते हैं। ये जो स्ट्रोमा लैमेली है, क्या है ये, स्ट्रोमा लैमेली आर द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स दैट आर जॉइनिंग द ग्रेना। दो ग्रेना को ज्वाइन करने वाला ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से वो उसको कैविटी है और उसमें से रैपिड ट्रांसपोर्ट होता है, वो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रोमा लैमेली। खासियत ये है कि इस स्ट्रोमा लैमेली पर पिगमेंट सिस्टम 1 प्रेजेंट होती है ओनली। अभी हम देखेंगे पिगमेंट सिस्टम 1। और ये जो थाइलाकॉइड्स है, ये थाइलाकॉइड्स, इस थाइलाकॉइड्स में फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 ऐसे दोनों भी फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक्चुअली फोटोसिस्टम्स मतलब क्या, ये हम अभी देखेंगे, लेकिन इस पूरे पढ़ाए गए पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल गिव यू आंसर। अभी हम शुरू करेंगे एक पॉइंट को, नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जब हम ऐसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का जो प्लांट है या क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो सवाल यह है कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करता है, तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस के लिए लगने वाले
pigments. These are the organic substances or organic compounds that can absorb the light energy of certain wavelength and reflect the light of other wavelength. These are called as the photosynthetic pigments. कहां पर प्रेजेंट है ये? क्वांटा जोन में. अभी मैंने बताया आपको क्वांटा जोन में प्रेजेंट है. ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली. पहला प्रकार होता है क्लोरोफिल्स. क्लोरोफिल्स, क्लोरोस ग्रीन कलर के, फील एक्चुअली फील का मतलब लीफ होता है, लेकिन यहां पर क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. ये पिगमेंट्स जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं इनमें ये सॉल्युबल है. अभी ये जो क्लोरोफिल्स है इसके बारे में कुछ बातें सबसे पहले यहां पर देखेंगे. ये क्लोरोफिल्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं उनके, लेकिन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए की खासियत क्या है कि क्लोरोफिल ए is the only pigment that can absorb as well as convert light energy into chemical energy. ये अकेला पिगमेंट है, बाकी किसी भी प्रकार के पिगमेंट में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सके और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सके. ये अकेला ऐसा है जो ये बात कर सकता है. So this chlorophyll A is called as the reaction center, क्योंकि ये रिएक्शन करता है ना कन्वर्जन की, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर. और क्लोरोफिल बी जो है, क्लोरोफिल बी से आगे सभी पिगमेंट्स को आप कहेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स. क्यों कहेंगे एक्सेसरी? बिकॉज दे कैन ओनली एब्सॉर्ब द एनर्जी बट दे आर अनेबल टू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, हेंस कॉल्ड एज द एक्सेसरी पिगमेंट्स. ये जो क्लोरोफिल ए है इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, और बेसिकली जो प्राइमरी रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस की, मतलब लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये रिएक्शंस करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. तीसरी बात, chlorophyll A is present in universally in almost all the photosynthesizing organisms except photosynthetic bacteria. So except certain exceptions are there, and that is why this chlorophyll A is also known as universal pigment. Universal pigment. Okay, this is the chlorophyll A. Now chlorophyll B. Chlorophyll B is the accessory pigment that can absorb only but cannot convert it into the chemical energy. Chlorophyll A is bluish green in color. Chlorophyll B is yellowish green in color. ये हो गया क्लोरोफिल्स के बारे में. अभी एक्चुअली इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं कैसे है. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या है? क्लोरोफिल्स आर द चेलेट salts of magnesium. Now what is chelate salt? Chelate salt means these are in this manner. इनका स्ट्रक्चर काइट के जैसा है. चिलेट मतलब सेंटर में एक एटम होता है नॉन आयोनिक एटम, और दूसरे ऐसे इनमें 4 रिंग्स होते हैं. 4 रिंग्स है इनमें, ये 4 रिंग्स. तो ये जो है सेंट्रली प्लेस्ड मैग्नीशियम एटम को ये 4 रिंग्स अटैच्ड है, इसीलिए उसको बोलते हैं चिलेट सॉल्ट. ये काइट लाइक और द टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल्स इज देयर. दिस रीजन इज कॉल्ड एज द porphyrin head, and that region is called as the phytol tail. Phytol tail. Porphyrin head is made up of 4 rings. First, second, third and fourth. ये 4 रिंग है. कौन से रिंग है? इनको बोलते हैं पायरोल रिंग. 4 पायरोल रिंग्स है, इसलिए उसके हेड को आप टेट्रा पायरोल कहते हो.
4 पायरोल रिंग्स इसमें प्रेजेंट है। ये पायरोल रिंग कैसे बनी है? पायरोल रिंग कुछ इस तरीके से बनी है। पायरोल रिंग इज मेड अप ऑफ 5 एटम्स, उसमें से एक नाइट्रोजन होता है तो बाकी के 4 कार्बन्स होते हैं। एक नाइट्रोजन 4 कार्बन, एक नाइट्रोजन 4 कार्बन, ऐसी रिंग से ये बना है ये। और सेंटर में मैग्नीशियम एटम है, ये इसको अटैच्ड है। और ये हो गए पायरोल रिंग, पायरोल रिंग, पायरोल रिंग, पायरोल रिंग। ये 4 पायरोल रिंग्स एक दूसरे को भी अटैच एडजेसेंट रिंग्स अटैच्ड होते हैं। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस फोर्थ को ये टेल अटैच्ड है। इस तरीके से ये उसका हेड का रीजन है, पोरफायरिन हेड। इसमें Mg एटम है, दैट इज व्हाई हमने मिनरल न्यूट्रिशन इस चैप्टर में सीखा था कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के लिए मैग्नीशियम लगता है। तो ये इसका कारण है, मैग्नीशियम उसके सिंथेसिस के लिए भी, मतलब उसके स्ट्रक्चर के लिए भी लगता है। दूसरी फाइटोल टेल। फाइटोल टेल क्या है? ये है 20 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल, लास्ट में OL है, मतलब ये अल्कोहल है। 20 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल एंड इट इज अटैच्ड टू द 7th कार्बन ऑफ द पायरोल रिंग फोर्थ पायरोल रिंग की 7th कार्बन को है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 7th कार्बन तो कहीं दिख नहीं रहा। एक्चुअली इसको और अटैच्ड होते हैं, इसको और अटैच्ड होते हैं कार्बन, और बाद में उस कार्बन को ये फाइटोल टेल अटैच्ड होती है। In this manner, this porphyrin head and phytol tail, ये दोनों को मिलाकर बनता है काइट लाइक पतंग और tadpole like structure. That kite or tadpole like structure means the chlorophyll molecule, which is called the chelate salt of magnesium. This is about the structure of chlorophyll and chlorophyll. हेलो, देखो अभी इसके बाद वाला जो पार्ट है, जैसे कि बाकी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स और फोटोसिस्टम वगैरह, ये पार्ट वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।